శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. మరొక్కసారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. కళ్యాణోత్సవానికి కూర్చున్న గృహస్థులందరూ సంకల్పం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా నేను చెప్తాను, తర్వాత మీరు చెప్పండి. మమ అన్నప్పుడు మీ గోత్రనామాలు మీరు తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పం చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విగణసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విగణోర్నవం శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయేత్. యస్సద్భిరద వక్రాద్యాః పారిషద్యాః పరస్సతం విఘ్నం విఘ్నంతే సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ విష్ణోః ఆజ్ఞాయ ప్రవర్ధమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారికే చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభతిథౌ శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియక్పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనీల అలర్మేలుమంగా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః సకల దేవతా సన్నిధౌ మమ
ఇప్పుడు గృహస్థులు వారి వారి గోత్రనామాలు వారు చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా వారి గోత్రం, తర్వాత దంపతులు వారి పేర్లు, పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో సహా కుటుంబంగా అందరూ వారి వారి గోత్రనామాలు స్వామివారి సన్నిధిలో తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं साहसे प्रकाशे च अनेक जन्मसु इह जन्मनि च बाल्य यौवन कौमार वार्धिकेषु एतक्षण पर्यन्तं सर्व पाप परिहार सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं सर्वेषां लोकानां क्षेमार्थं श्रीवैकानस दिव्य आगमुक्त प्रकारेण कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ஓம் நமோ நாராயணாய. குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுத்துயர் ஆயினவெல்லாம் இளம் தரும் செல்வம் தரும் நீள்விசும் அருளும் அருளொடு பெருநிலம் அளிக்கும் வலம் தரும் மற்றும் தரும் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலந்தரும் சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம். திருமங்கையாழ்வார் போற்றிப் பாடிய அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனே இதோ இந்த திருமலையில் அர்ச்சா ரூபியாக திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக இன்றகோலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார். அந்த எம்பெருமானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் சுவாமி சொற்படி சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். பக்தர்களே, இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசித்து ஆதி தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி TK லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் இவை இப்போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடைபெற உள்ளது. மங்கள ஒளிகளை நாம் இப்போது கேட்போம். இப்போது முதலில் நடைபெறுவது விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம். விஸ்வக்சேனர் எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவர். எந்த காரியமானாலும் அதில் வரும் தடைகளை நீக்குபவர் சேனை முதலி எனப்படும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர். ஸ்ரீ வைகானசமோ ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரமோ எந்த ஆகமம் ஆனாலும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை ஆராதித்த பின்னர்தான் அத்தனை கோவில்களிலும் உற்சவங்கள், ஹோமங்கள், பூஜைகள் இவை ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. அதே போன்று இதோ இப்போது நமது எம்பெருமானின் நித்திய கல்யாண உற்சவத்திலும் முதலில் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம் நடைபெற உள்ளது. வைகுண்ட லோகத்து சேனை முழுவதையும் பரிபாலனம் பண்ணுபவர் இவரே. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो
महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् यस्य द्वैतवक्राद्याः पारिषद्याः परसतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं शक्त्यनन्तमास्येत् प्राणानां अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकवाचनं गरिषे अदुशक्तिनाराधनं गरिषे दारासुप्तस्व जमानसेषु सरस्य परपोषेषु आभोगृण्डाकुरमिदुद्धर्म इदमापस्यतमाशान्ताकं शोभाशोपतमात्मता पुरुतमा पुण्या पुण्यतमा मेघ्यामे दधमा मृता ब्रह्मोत्पास्त्रपौत्रेण पुद्धासोद्यक्षरश्मिः ओम विज्ञानमावाहनं कृत्वा करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि गङ्गाजलं पुण्यं पावनं सर्वपानं विषमाशुद्धं सर्वमङ्गलदायिन ब्रह्मभूतं यजभूतं सुवाहं गङ्गाकृष्णाय नमः कावेरी तुलभद्राचा विष्णुवेणीजगोर्मे भागीरथी पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः गङ्गाजलमावाहयामि जले वरुणमावाहयामि सहोदमावाहयामि रत्नाम्बरमावाहयामि राजस्वरमावाहयामि हृदयसुतमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् इदमासनम् चतुरोपचारां समर्पयामि नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि धूपदीपालङ्करणात् हस्तदां धारयामि गौरवफलनिवेदयामि ताम्बूलनिवेदयामि वरुणाय नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयाद चतुरोपचारां समर्पयामि सुप्रेतहासप्रसन्नावरदो अदौशक्यनाराधनं करिष्ये उशक्तेनं सकलविदं प्रौढसैन्यासनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ ददानं शुभाङ्गं च वनमकुटं विदस्तं जादेवं धनुजोजं तद्भक्ते सोत्रपति जया समेतं उशक्तेनाय नमः ओं पद्माकारमण्डले उशक्तेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि निर्ज्ञानपाय नमावाहयामि तद्दक्षिणे सोत्रपतिमावाहयामि वामे जयमावाहयामि सोत्रपते जया समेत उशक्तेनाय नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनीयादि चतुरोपचारां समर्पयामि नानाद परिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ओम ऋषभदेवाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपाय नमः स्तोत्रवत्ये नमः जया नमः स्तोत्रवते जया समेत ऋषभदेवाय नमः नानाद परिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि धूपदीपालङ्करणात् गौरवफलनिवेदयामि ताम्बूलनिवेदयामि आवाहनाचार्यदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयादि चतुरोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः प्रसन्नो वरदो भवन्तु पुण्याहं करोमि प्रोक्तमस्तु राजाप्रियतां प्रियतां प्राजापतिः साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानिहितः शुभान्वद्धन्तां तदां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानिहितः शुभान्वद्धन्तां तदां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानिहितः शुभान्वद्धन्तां तदां शुभाने अतो देवा आवन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढपस्य भागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाद्यः तरो धर्माणि धारयन् विष्णोर्कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पद्मसे इन्द्रस्य यज्जुस्सगा तद्विष्णोद्यत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रा स्वाभिपन्यवोजा गृवागं दस्यन्ते विष्णोद्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेमि शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येवाक्षभिर्यत्राः श्रीरङ्गाय स्वष्टुवांसस्तनोभिः देवदं यदायुः नरः पुण्याहं ब्रुवन्तो ओम पुण्याहमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रहदेदमस्तु शिवोस्तु शिवपक्षोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोत्सवाङ्गकर्मणि स्वस्य ब्रवन्तु स्वस्ति विश्ववेदाः स्वस्य नष्टारमैष्टनेमि ददातु वैवाहिकोत्सवाङ्गकर्मणि रुद्रब्रवन्तु रुद्रास्वाम्ये मित्रं देयमितदेन्नो अस्तु अनुराधानभिषा वर्धयन्तः शतञ्जैवे मसरदसवीराः नवो नवो भौतिजायमानो नाम के दुरुषा मेतक भागम देवेभ्यो विदधातां चन्द्रमाः सरदीर्घमायुः विद्युन्नवद्याः ब्रह्मन्तो ऋतिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टामयो भुवतानमोध्ये ददातनः महिरणाय चक्षुषे यवसवदमोरसत्सभाजयतनः वसुदेरुवमातरः तस्मादलङ्कमामवो यत्क्षया इदुम्बदा आपोचनीयताजनः उपमानसुमज्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यक्पूता सा पुनः मां पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनवोधिय पुनन्तु विश्व आयवः यातवेद पवित्रपद पवित्रेण पुनः हिम शुक्रेण देव यद्यद् अग्ने
कृद्वागदा गम्रणो यद्देवद्रमच्युषे अग्निविद्युतमन्तरः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनीते देव्यागात् यस्य भक्तिस्तनो भवेत पुष्टाः तया वदन्त सतमाद्येषु वयगस्यामपि तयोरयेन वैश्वानस्मिर्मापुनादो वातप्राणेने जुरोमयोभोः जावापयसा रुदावरिग्नेमा पुनीतां रोद्वेषवदश्रुभिः वज्रिष्टैर्देवमन्विभिः अग्ने दक्षे पुनाहिम येन देवा पोनतः येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येन ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुनीमहे यत्पौमानेरध्येते ऋषभेशं दगम्रसं सर्वगं सपदमस्नादे सतितं मातुरिस्वनां पौमानिर्यो अध्येते ऋषभेशं दगम्रसं तस्मै सरस्वते दहे क्षेरगं तत्पद्मदोदकं पवमाने स्वस्तयने सदगाहे पयस्वतेः ऋषभेशं मृदोरसः ब्राह्मणेष्वदगं विदौ पवमानदिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दयन्तनः देवैर्देवैः समभृताः पवमाने स्वस्तयने सदगाहे कतश्चतः ऋषभेशं मृदोरसः ब्राह्मणेष्वदगं विदौ तेन ब्रह्मविदोमयं बोधं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सह मापुनादो सोमस्वचन समीच्या यमो राजा प्रवृणातु मां जातवेदो मोर्ध्यन्त्या पुनादो तत्संयो रावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं दिगातु वेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे जमृष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दक्षिणायां देश माता पितरो देवते धर्माध्ययनां त्रिज्ञां देवे गन्धर्वाप्तराज्यं यज्ञमद संवत्सरस्य धर्माध्ययनां ऊर्ध्वायां देश औषध यौवन अस्पत्रे धर्माध्ययनां अधरायां देश नागे व्याते धर्माध्ययनां पोहंष्टामयो भुवस्तान बोध्य ददातनो महे धनो यतते देवसुवदनोरसस्तवा वेदेनः यजतेरुपमातरः तस्मादनन्दमामवो यस्मिच्छया यन्नदा आपो जनयता जनः पुण्याहमेव कुरुते न्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु न्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु न्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुष्यक्तेनाय नमः वरुणाय नमः यदा तां दृष्टा पद्यदातां स्थापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च பக்தர்களே, நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த பாசுரத்தை செய்தவர் திருமங்கை மன்னனான பரகாலர் திருமங்கை ஆழ்வார். கல்வனாக திரிந்த அவரை ஒரு மாயத்திரை சூழ்ந்திருந்தது. அந்த மாயத்திரையை எம்பெருமான் தானே ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் இருந்து அவரது செவிகளில் ஸ்ரீமன் நாராயணா என்னும் அக்ஷாத்திர மந்திரத்தை ஓதி விளக்கினார் அல்லவா. இங்கு நாமும் பரகாலர் போன்று சம்சார திரைக்குள் சிக்கியிருக்கிறோம். இந்த அஞ்ஞான திரையையும் விளக்க வேண்டியவர் அந்த எம்பெருமான் தானே. அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அஸ்தக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம் இது. அது மட்டுமல்ல, அங்கே உள்ள நவ தானியங்களிலும், அதாவது பாலிகை எனப்படும் அந்த நவ தானியங்களில் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களாலும் துளசியாலும் அர்ச்சித்து மந்திரங்களை சொல்லி அது செழித்து வளர்வதைப் போல் தம்பதிகளின் இல்வாழ்வும் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவதைகள் அனைவரையும் வேண்டிக் கொள்கிறார்கள். அமலநாதிபிரான் அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் விண்ணவர்கோன் விரையார்பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீள்மதில் அரங்கத்தெம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள்ளே ஒக்கின்றதே என்று திருப்பானாழ்வார் எம்பெருமானை பாதாதிகேசம் வர்ணித்தார். அந்த பாணரைப் போன்று இந்த பேரழகு சௌந்தரியத்தை வர்ணிக்க நம்மிடம் வார்த்தைகளே இல்லை. அதனால்தான் பெரிய திருமலை நம்பி காட்டவே கண்ட பாத கமலம் நல்லாடை உந்தி தேட்டரும் உதரபந்தம் திருமார்பு கண்டம் செவ்வாய் வாட்டமில் கண்கள் மேனி முனியேறி தனி புகுந்து பாட்டினால் கண்டு வாழும் பாணர்த்தாள் பரவினோமே என்று அந்த பாணருக்கே வாழ்த்து பாடினார். பக்தர்களே, அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண வைபவம் இது. அந்த திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது நாம் தரிசித்து கொண்டிருப்பது அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். நின்றதுவும் வெய்வங்கு தன் சாரல் வேங்கடமே என்றார் ஆழ்வார். அப்படிப்பட்ட திருவேங்கடத்து மலை மீது
அக்ஷாரூபியாக வீட்டிருக்கிறார் எம்பெருமான். வினைச்சுடரை நந்துவிக்கும் வேங்கடமே வானோர் மனச்சுடரை தூண்டும் மலையாம். நம் இதயமாகிய விளக்கில் சுடர்விட்டு எரியும் பக்தியை இந்த மலையின் தரிசனமே தூண்டிவிடுகிறதாம். முதலாழ்வார்களில் ஒருவரான பொய்கை ஆழ்வார் இப்படி பாசுரமிட்டிருக்கிறார். பேயாழ்வாரோ தனது பாசுரத்தில் திருமலையை பரமபதத்தோடும் பார்க்கடலோடும் ஒப்பிட்டு பேசுகிறார். பண்டெல்லாம் வேங்கடம் பார்க்கடல் வைகுந்தம் கொண்டங்கு உறைவோர்க்கு கோயில் போல என்கிறார். இவ்வாறாக முதலாழ்வார்கள் மூவரும் அனுபவித்த இந்த திருமலை மேல் வந்து நின்று கொண்டு சம்சார சாகரத்தில் தத்தளிக்கும் நம் போன்ற பக்தர்களை கரை சேர்க்கும் மாலுமியாக சேவை தருகிறார் திருவேங்கடத்து எம்பெருமான். அவரது திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் முடிந்து இதையடுத்து இன்று எம்பெருமானுக்கும் தாயார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த ரட்சைகளுக்கு இப்போது பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக ஐதீகம். ஆகவே இப்போது நாகராஜனை ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அந்த ரட்சை பூஜையை இப்போது நாம் தரிசிக்க இருக்கிறோம். रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः आवाहयामे ध्यायामे ध्यानं समर्पयामे आवाहयामे आसनं समर्पयामे आर्घ्यपाद्याचमनीयाचतुरोपचारां समर्पयामे नानादपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामे ओम अनन्ताय नमः शेषाय नमः नागराजाय नमः शास्त्रशीर्षाय नमः द्रौपदीपालङ्करणार्थं अक्षतां धारयामे गूढफलं निवेदयामे ताम्बूलं प्रदुष्टदा ताम्बूलं निवेदयामे आवाहनार्थं देवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयाचतुरोपचारां समर्पयामे सुप्रेतः सुप्रसन्न वरदो भवन्तु हरिः ओं स्वस्तिनो ममे तामस्विना भग स्वस्ते व्याधेन्द्र नर्वणः स्वस्य भूषा असुरो ददातु न स्वस्तिज्यामः पृथिवेषु चेतनः स्वस्तये वायुं बभ्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्य आदित्याः सो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानर वसुरग्निं स्वस्तये देवा आवन्त्रुभव स्वस्तये स्वस्ति न रुद्रपाद्वं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणः स्वस्य मध्ये रेवते स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो दिदेकुते स्वस्य वन्धामनोतरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनः ददातु दिग्नता जानता संगमे महि स्वस्ति अनन्तार्यक्षमरिष्टनेमि महाद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासगवज्यस्व नमामि वारुहेम हम हम च माङ्गीरसंज्ञं स्वस्तात्रेमनुसात्राक्षं प्रयतपासेनं प्रपद्ये स्वच्छ सम्पादेषु नभयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्. பக்தர்களே, ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்து வரப்போவது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். சேஷன் என்றால் பணிவிடை செய்பவன். ஆதி என்றால் வைகுந்தத்தில் பணிவிடை பண்ணக்கூடியவர்களில் முதலாம் அவர் என்று பொருள். ஆகவேதான் ஆதியிலிருந்து எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டிருப்பதால் இவர் அந்த ஆதிசேஷன். அந்த ஆதிசேஷன் தானே இந்த கங்கணத்தில் ஆவகனமாகி எம்பெருமானுக்கு ரட்சையாக வந்துவிட்டாராம். எம்பெருமானுக்கு எல்லா வகைகளிலும் கைங்கரியம் பண்ணும் நித்தியசூரி அல்லவா ஆதிசேஷன். அந்த ஆதிசேஷனை இளைய பெருமாள் என்பார்கள். ஸ்ரீ ராமாவதார காலத்தில் ஸ்ரீராமனுக்கு இளையவனாக லக்ஷ்மணனாக அவதாரம் பண்ணி அவர் தமையனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணினது எத்தனையோ. ஸ்ரீராமனுக்கு ஓர் ஆபத்து என்றால் அவருக்கு முன்னால் வந்து நிற்பாராம் லக்ஷ்மணர். அத்தனை வாத்சல்யம் பக்தி தமையனிடத்தில். ஆகவேதான் இந்த கலியுகத்திலும் திருவேங்கடவனாக நிற்கும் எம்பெருமானுக்கும் இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் ஒரு திருஷ்டிகழிக்கும் வண்ணமாக ஒரு காப்பாக ஆதிசேஷன் இந்த ரட்சையில் ஆவாகனமாகி இருப்பதாக வைகானச ஆகமம் சொல்கிறது. பக்தர்களே, நமது திருமணங்களில் கூட இந்த கங்கணம் கட்டும் வைபவம் முதல் நிகழ்வாக இருப்பது நமக்கு தெரிந்ததே. அந்த நிகழ்ச்சி நம் போன்ற பக்தர்களுக்காக தினந்தோறும் நடைபெறுகின்ற எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண வைபவத்திலும் முதல் நிகழ்வாக கிரமமாக இதோ இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு என்று எம்பெருமானுக்கே காப்பிட்டார் பெரியாழ்வார்.
தனது திருமகளான ஆண்டாள் பிராட்டியை மணக்கப் போகும் மாப்பிள்ளை அல்லவா? அந்த மாப்பிள்ளையை மாமனார் காப்பிடுவது முறைதானே? அப்படி அந்த வகையில் எம்பெருமானுக்கு எந்த தீர்க்கண்களின் திருஷ்டியும் படாத வண்ணம் அந்த பகவானுக்கு ஒரு காப்பு கட்டும் வைபவமாக இதோ இந்த ரக்ஷாபந்தன நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இதோ இப்போது எம்பெருமானுக்கு அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் கோவிந்தனை மனதிலே தியானித்து கொண்டு இந்த நிகழ்வை கண்குளிர தரிசிக்கலாம். கோவிந்தா 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 என்று செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே, நெடியானே வெங்கடவா, நின் கோயில் வாசல் அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்துன் பவளவாய் காண்பேனே. इमां जनताकुं सङ्गण्ठानेते द्वादशारतनेरचनाभवते द्वादशमासाः संवत्सरमेवावरन्ते मां भवते नोद्वयपुञ्जाः ओद्यमेवावरन्ते यत्तानक्षत्रं भवति यद्ब्रह्मयेतत्कर्म यजसमेव समृद्ध्येः ते ये जातश्रियानिर्याश्रियम्बयोतरुद्रभ्यो ददाति तेयं वदाना अमृतसमादामिस्तभ्य समृदामेतद्रो ते ये नमः धृते नमः पवित्रे नमः प्रमोदायिन्ये नमः मेदिने देवे वसुन्धराजात् वसुधा देवे वादवे ब्रह्मवतिजातिनो मेदिने नमः मत्ये नमः क्षोभ्ये नमः हरिण्ये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि वाद्योपद्यं समर्पयामि अष्टोद्यं समर्पयामि तन्नो देव्याजनं कृत्वा तन्नो देवी रविष्ठया भवन्तु पेते तन्नो राभिष्ठवन्तनः ते देव्ये नमः आर्घ्यपाजातमर्यादचित्रोपचारां समर्पयामि भूदेव्ये नमः आर्घ्यपाजातमर्यादचित्रोपचारां समर्पयामि रक्षाबन्धनं करोमि च रक्षाबन्धनं करोमि सुमङ्गलेरियं वधूरिमागं समेधवसतां सौभाग्यमस्मै धत्वा यादास्तमे परेतन इमां समिन्द्रमेध्वस्वपुत्रागुं च भगां कुरु दश आस्यां पुत्रानादेः पद्मे गादजं गृहे रोजनो रोजमानश्व भनो शोभमानः कल्याणः सुमङ्गलेरियं वधूरिमागं समेधवस्यतां सौभाग्यमस्मै धत्वा यादास्तमे परेतन इमां समेन्द्रमेध्वस्वपुत्रागुं च भगां कुरु ददास्यां पुत्रानादेः पद्मे गादजं गृहे रोजनो रोजमानश्व वनो शोभमानः कल्याणः विष्णुस्त्वां रक्षतु चक्रवोद्भन्दनः पूर्वं चक्षुर्दक्षिण मपरङ्गतो ते नन्धकोरस्ताद्यासु खेदान्तरे देवताः विघ्नो विघ्नादेशोऽत्र सादिन्द्रोद्भय दुःखाद्यमो वर्णो विक्रमात् कुबेरोर्धक्षया चेतनपूनाभ्यः मनः सर्वे रक्षन्तु रक्षाम् आत्मरक्षां कृत्वा रक्षाबन्धनमुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तान् गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु भगवतो नारायण सजगपदे प्रणोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवां गर्भाग्तेन आगार कर्म कष्टे हेतोन्विन्द्रमतिज्ञाल्यं प्रोक्ष्य हेतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नः शुद्धे रुब्धैर्वा वृद्धांसं शुद्धासेर्वान्मुचो इन्द्र शुद्धो शुद्धा वृद्धिः इन्द्रं शुद्धो रत्नानिदातो शुद्धो वाजं चाते मयि देवा प्रणमिष्यामि जामि देवदाहो तारं कुयन्तु शुद्धेदिष्टास्यामतः अनवातवीराः वाक्यं यजन्तम्यानुज्ञप्य ओदस्तत्यामनसोत्राहं विश्वे देवादो अधिवोचतामे देवे षड्वेतनकां प्रागृग तद्यन्पात्मानं शिवानस्तन्मानस्तन्मामाद वेदोपदाद तष्टात्मतरेण्यं भक्तो देवसदिमेः जय्यो
यो न प्रचोदयात् यादवेदसोत्रेणं भेट्वा रेखा गायत्रीं प्रोक्ष्य षण्मात्रमुल्लेख्य रेखायां स्कन्धमावाहयामि करणे पितृमावाहयामि सण्डीले भूमिमावाहयामि मदलौकिक अग्निमादाय यादवेदसे अग्निसद्वासमे गर्भाः यनेन मयोगोः उदक् प्रतीको कृतप्रज्वाल्या ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि इंद्रमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन दाताविन्दो इंद्रमावाहयामि सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारभृत्या इदमासन ब्रह्मं प्रोचिष्यामि आजजमानोऽस्तु सप्तऋषीणां प्रजापतिः सोमं प्रोचिष्यामि आजजमानोऽस्तु सप्तऋषीणां प्रजापतिः ओं प्रोक्ष्य पात्रादावमादाय अधो सूर्यस्य रश्मिभिः आबुदाग्ने कुरुदास्ता विष्णुस्तुभोसि प्राच्या पृथिवे अंतरिक्षाय स्वाहा वर्णेशौषाय स्वाहा वेदेश विष्णुस्तुभोसि परिस्तरणकोट्चं निधाय विष्णवे नमः यद विष्णुस्तुभोसि महाविष्णवे नमः यद विष्णुस्तुभोसि नारायणाय नमः यद विष्णुस्तुभोसि ब्रह्मं प्रोचिष्यामि प्रोचग्रमणध्वं देवतावद्धना गसपटिजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजामानकरेः त्वमं प्रोचिष्यामि प्रोचग्रमणध्वं देवतावद्धना गसपटिजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजामानकरेः ॐ प्रणय ॐ वै गृह्णातु तस्मै वा गृह्णातु तस्मै वा गृह्णामि तस्वतरेण्यं वर्गो देवसदिमेः धियो न प्रचोदयात् ब्राह्मणेभ्यः ओं प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवस्स्य ओं महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनीमावाहयामि उषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान्देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापति ज्येष्ठनिर्वपामे अग्निज्येष्ठनिर्वपामे वसुभ्याज्येष्ठनिर्वपामे मरुभ्याज्येष्ठनिर्वपामे रुद्रेभ्याज्येष्ठनिर्वपामे अपवस्स्य ओं महाविष्णवे ज्येष्ठनिर्वपामे बृहस्पतिज्येष्ठनिर्वपामे आदित्येभ्यज्येष्ठनिर्वपामे अस्वदेभ्यज्येष्ठनिर्वपामे कोष्ठज्येष्ठनिर्वपामे कक्षाज्येष्ठनिर्वपामे कक्षदेवतसोमाज्येष्ठनिर्वपामे यज्ञदेवत विश्वान्देवेभ्यश्चनिर्वपामे सर्वदेवेभ्यज्येष्ठनिर्वपामे तृप्यदस्यामे चरमदस्यामे अग्निर्ज्योतिरसे समिदसे स्वाहा अमृतमसवाणमसे अंतरिक्षगम आराधयः चित्पादित्वापनाद्रेण विद्रेणुसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पचित्वापनाद्रेण विद्रेणुसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवसप्ताद्रेण विद्रेणुसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा करसं पुरुषान् कृत्वा अभ्यर्चाम् अक्षताम् आद्यां चरवेः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः वैश्वनराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः हरिते नमः हनुमते नमः सरस्वते नमः देवतो दब्रदुम ऐन्द्रात्मा जातवेदं तेने दत्तोदे समेदाय स्वाहा आगारमुहूर्तमुहूर्तोऽस्तु आगस्त्वा वायुव्यादाग्नेयान्त प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्त इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवस्स्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा कोष्ठे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्व
स्वाम देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिगार्य चरुं सावित्राग्रहयित्वा पुनरपि गार्य ओं भुव्याहुतिः ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा हरते नमग्नस्ताः हनुमते नमग्नस्ताः सरस्वते नमग्नस्ताः देवतो दप्रासावे हस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रोटोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोचवाङ्गगर्भाङ्गमुदेनागारमध्यनारिक्तस्तल्लोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णव मोक्षे हरते नमन्यस्व हनुमते नमन्यस्व सरस्वते नमन्यस्व देवतो दप्रसुव अतो देवा वन्तु नो यतो विष्णोर्वे चक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा विष्णुर्वे चक्रमे त्रेधानि तदेपदं समूढपस्य पागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदामि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यते यतो रथानि पश्यसे इन्द्रस्य यज्जुस्सका स्वाहा तद्विष्णोद्यत्परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरात् दग्गः स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं दृश्यन्ते विष्णोद्यत्परमं पदग्गः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा हरतेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो दप्रासावेः अग्निप्रेष्ठापना मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము हरे ओम अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अचिन्त्याद्भुतशक्त्या परिभ्रमणायमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम् एकदमेव्यक्त महदहङ्कारपृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशाद्भैरारानुते अस्मिन् महद् ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिकूर्मानन्द पदवे क्षीरसागरे श्वेतदिव्यमण्डपग्निजो परिप्रतिष्ठितस्य अतलमितल सुतलतलादसातल महातल पातालादि सप्तपातालस्योपरि तले भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनलोक तपोलोक सत्यलोकाकेश अल्लोकानामदमभागे महानालाय पनिराज शेषस्य सहस्रपणा परिमण्डलं मण्डते दिग्धण्ड दण्डो दण्डोर्दम्बिते लोकालोकैकलवते लवनाद सप्तसागरे परिवेष्यते जम्बो वृक्षाद सप्ते द्वीपे द्वीपते माहेन्द्राद सप्तकुलपर्वत विराजते हेमकूटाख्यात् इन्द्रप्रस्थाद नवगण्डात्मके हरिपुरुष किंपुरुषैरावतानाम् इन्द्रप्रस्थमणक पाञ्चजन्य सिंहलल्पके 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डात्मके जम्बूद्वीपे
मंडपे भारतवर्षे भरतखंडे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णा कावेर्योर् मध्य प्रदेशे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेषां द्विवसा परेषां तद्वंश्याणां पितॄणां नरकादित्तेर्य आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य लोकेषु सा लोक्य सा रूप्य सा मिप्य सा युज्य पद इति चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधार शक्ति गौर्मावृतिः बृहद्मणि छत्रिकास्यपावृतिः कोटि चातुर्लक्ष प्रमाणागे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रि कन्यादानास्तु फला प्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य शंख चक्र ग्रास अर्घनंद कौमोदकी पंचायुधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैकानस आगमोक्त प्रकारेण आंगिरस बृहस्पति भारद्वाज त्रयार्षे प्रभरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत् कारणभूतस्य मूल प्रकृति बोध विधानेन प्रवर्धमानस्य संघर्षणावतारस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रेम आंगिरस बृहस्पति भारद्वाज त्रयार्षे प्रभरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध वेद प्रवर्धमानस्य संघर्षणावतारस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवसाद उत्पस्थितिरगादमानसुकीयमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय आंगिरस बृहस्पति भारद्वाज त्रयार्षे प्रभरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानुकिटमणि मकुटजुम्रपराजित पादारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपादि भगवत् परवासुदेवस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगिरस बृहस्पति भारद्वाज त्रयार्षे प्रभरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट कैर दिव्यावरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्यावरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निज अवताराय स्वर्ण गरुड वाहन रूढ़ाय अचिंत्याद्भुत यौवन रावण तेजो रत्नाकराय सकल वेदासागाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुर्सामादरण चतुर्वेदासागाध्यायीं भार्गवस्यानाब्दान् हर्ववल्लभपञ्चाशे प्रवरान्वित भार्गवस्य गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां हे महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं आनन्दकलात्मिकां मूलप्रकृतिभूताम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या राजोजातायाम् इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। ऋग्यजुर्सामादरण चतुर्वेदासागाध्यायीं काश्यपावस्तारनेत्रत्रयार्षे प्रभरान्वित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अदौ श्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाताय इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकधिगीर्णया कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं स्वशैलाय सुमेधते प्रहितोऽहं प्रयच्छामि धर्मकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भर सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः विष्णवे तुभ्यं प्रदास्यामि। प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तान् गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களமராக நிறைவேறியது. இதையடுத்து நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் ஆசமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். கண்ணனின் லீலைகளை எத்தனை தரம் கேட்டாலும் போதாது. அது போன்ற ஒரு கண்ணனின் லீலையை இந்த மாங்கல்ய பூஜை சமயத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். மகாபாரத காலத்தில் அரக்கு மாளிகை சம்பவத்துக்கு பின்னால் பாண்டவர்கள் கௌரவர்களுக்கு தெரியாமல் தன் தாயார் குந்தி தேவியோடு காட்டில் வசித்த போது குந்தி தேவி குடிலுக்குள் சமைத்துக் கொண்டிருந்தாராம். பாண்டவர்கள் ஐவரும் வெளியில் போயிருக்க குந்தி தேவிக்கு தனது சகோதரர்
தன் நலனை விரும்பும் அந்த கண்ணனை நினைத்தாளாம். உடனே கண்ணனுக்கு பிடித்த பால் பாயசத்தை செய்து தான் வழிபடும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண விக்கிரகத்துக்கு நைவேத்தியம் செய்ய முற்பட்டாளாம். அப்போது குடிலின் வாயிலில் அத்தை என்று அழைக்கும் மதுர ஒலி கேட்டதும் அந்த பாயச பாத்திரத்தை அங்கேயே வைத்துவிட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தால் நிஜமாகவே கண்ணன் வந்து விட்டார். அத்தை, நீ என்னை நினைத்து பால் பாயசம் வைத்தவுடன் அதை சாப்பிட நான் நேராக வந்து விட்டேன். உன் பாசம் என்னை துவாரகையிலிருந்து இழுத்து விட்டது என்று சொல்ல குந்தி தேவியால் தன் கண்களையும் காதுகளையுமே நம்ப முடியவில்லையாம். ஓடோடிப் போய் பாதி பாயசத்தை வேறொரு கிண்ணியில் மாற்றி தன் புத்திரர்களுக்காக வைத்துவிட்டு மீதியை கண்ணனிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாளாம். அவள் கண்களிலே கண்ணீரை கண்ட கண்ணன், அத்தை, கலக வேண்டாம். அரண்மனையில் வாழ வேண்டிய நீங்கள் அனைவரும் இந்த காட்டில் வசிக்க நேர்ந்தது வேதனைதான். ஆனால் காலம் மாறும் என்று சொல்லிக்கொண்டே பாயசத்தை சுவைத்து உண்டாராம். ஆஹா, உன் கைமனமும் சுவையும் அலாதிதான், இன்னும் கூட சாப்பிட வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று கேட்க குந்தி திகைத்தாளாம். அடடா, இருப்பதை கொடுத்து விட்டால் வேலையிலிருந்து திரும்பிவும் புத்திரர்களுக்கு என்ன கொடுப்பது? இருந்தாலும் கண்ணன் கேட்கிறார், அதை கொடுக்காமலும் இருக்க முடியாதே என்கிற ஒரு தவிப்போடு அந்த மற்றொரு கிண்ணி பாயசத்தையும் கொண்டு வந்து தர கண்ணன் புன்னகையோடு அதை பருகிவிட்டு திருப்தியானேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டாராம். குந்தி தேவி பாண்டவர்கள் வந்தால் எதை கொடுப்பது என்கிற கவலையில் இருக்கும்போது மறுபடியும் கண்ணனின் குரல், அத்தை, நீ எனக்கு பிடிக்கும் என்று என்னை நினைத்து கொண்டு பாயசம் செய்ததால் நானே வந்து முழுவதையும் பருகிவிட்டேன். கவலைப்படாதே. உன்னையும் பாண்டவர்களையும் நான் பார்த்து மறந்து விடுவேனா? அங்கே சென்று பார். நீ எனக்கு முன்னால் கொடுத்த அந்த பாயசம், பின்னால் உன் புத்திரர்களுக்கு தனியாக எடுத்து வைத்த பாயசம் ரெண்டும் இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, பீமசேனனுக்காக தனியாகவும் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்ல தன் மடமையை எண்ணி வேதனை அடைந்தாளாம் குந்தி தேவி. கண்ணா, என்னை மன்னித்து விடு. உன் மகிமைகளை ஒரு சாதாரண மனுஷியாக தாய்ப்பாசத்தில் பாதி பாயசத்தை ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वविद्याय धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् मांगल्यदानं मानवं करिष्ये मांगल्यं दंतरानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे दामे वज्रदां तदं मांगल्यं दंतरानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे दामे वज्रदां तदं मांगल्यं दंतरानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे दामे वज्रदां तदं मांगल्यं दंतरानेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे दामे वज्रदां तदं मांगल्यं दंतरानेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे दामे वज्रदां तदं मांगल्यं दंतरानेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे दामे वज्रदां तदं मांगल्यधारण मुहूर्तस्य मुहूर्तो महांतो गृह्णन्तु सुमुहूर्तोस्तु सुप्रदिष्टितमस्तु కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను
పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు देवसो धप्रतिमा इमं मे वरुणसुते अध्यात्मणिया त्वां वसुराजगे स्वाहा तत्वाया मे ब्रह्मणा वन्दमानसदासास्ते च मानोर्भे आडमानो जगम समान आय प्रमोषे स्वाहा चित्तिञ्च स्वाहा चित्तिच्च स्वाहा आकुतिच्च स्वाहा आकुतिञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनभ्य स्वाहा चक्षुरिभ्य स्वाहा दर्दभ्य स्वाहा पूर्णमाज स्वाहा रान्त्रञ्च स्वाहा विरन्द्रञ्च स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा अग्निये स्वाहा यमाय स्वाहा नैऋत्ये स्वाहा वरुणाय स्वाहा वायुवे स्वाहा कुबेराय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अतिदेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसो धप्रासावे हस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य परे प्रोटोतमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गगर्भाङ्गपतेन राजहोमं मोक्षे अतिदेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसो धप्रासावे इमां राजानामित्यभिघार्य जानावपामे सम्रुज्यकरणान् मम तुभ्यं संवधानां तदग्नेरनुमन्यतां येयं नार्योपज्ञो राजाना वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां राजानावपामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवधानां तदग्नेरनुमन्यतां येयं नाद्योपग्नौ राजाना वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां राजानावपामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवधानां तदग्नेरनुमन्यतां येयं नाद्योपग्नौ राजाना वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अतिदेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो धप्रासावे इष्टदेवदेवस्य भगवतो नारायणः वैवाहिकोत्वाङ्गगर्भाङ्गपतेन राजोमान्ते यो नानिक्तः सरलोपप्रायश्चित्तार्थः अतो देवाद्वैष्णवं मोक्षे अतिदेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसो धप्तृतम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णोर्वे चक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णोर्वे चक्रमे त्रेधानि तदेपदां सम्मूढवस्तभागं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णुर्गोपादाद्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि वस्यते यतो रथानि पस्पसे इन्द्रसयज्जुत्सका स्वाहा तद्विष्णोऽद्यत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादग्ग स्वाहा तद्विप्रासो पद्यवोजाग्निवागं सन्दते विष्णोऽद्यत्परं वदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अतिदेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसो धप्रासावे हस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य परे प्रोटोतमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गगर्भाङ्गपतेन अन्तहोमं करिष्ये अतिदेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसो धप्रासावे यदस्य कर्मणोद्वारे ऋतमेद्भासो निमहाकर अग्निष्वात्रिक्तप्रद्विद्वाङ्करोतु स्वाहा अग्नेयेषुतकृतेषुताहुतीनां कामानागुं समुद्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नदाय स्वाहा अग्निन्नपतिये स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं तत्रैवानादिष्टं देवतामुष्वे स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपतिये स्वाहा यन्मात्मानां विदधोभूदग्नितत्पुनरार्जातवेदो विचक्षणे स्वाहा पुनरग्जयचक्षुतात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्
सर्वे अश्वानायुं दन्तपक्षोभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनेभ्यः स्वाहा वैषम्यष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्घ्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रामेत्याश्रावद समिदसि तेजोसि तेजमय दे स्वाहा सूर्य सदे में चक्षुर में पाहि स्वाहा सोम सदे में चित्तम में पाहि स्वाहा यम सदे में मुत्तर में पाहि स्वाहा वायुर्दे में प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दे में बुद्धिर में पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तश सप्तदाम अप्रियाणि सप्तहोत्राब्ददात्वा यजन्ते सप्तयो निर्वा प्रणस्व घृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वनष्ट प्रदेन वो नमात मनसा प्रजापति स्वाहा अग्नि भुक्त गस्वाहा वेद भुक्त गस्वाहा ध्यो भुक्त गस्वाहा पृथ्वी भुक्त गस्वाहा ओषधनस्पति गंधर्वा रचैव भुक्त गस्वाहा अग्निर्जेन गस्वाहा वेदजेन गस्वाहा ध्योजेन गस्वाहा द्यौजेन गस्वाहा पृथ्वीजेन गस्वाहा ओषधनस्पति गंधर्वा रचैव जेन गस्वाहा नमन्ता परिदाकृतेन ओ नमः हुदं मनसा प्रजापतये स्वाहा ओ नाहुति उत्तमां जुहोमि ओ नाहुति वै ओ नादेहि आज्ञाचेन इंद्राय जुहोमि स्वाहा ओ नादं जुहोमि स्वाहा ओ नादं हो दत्तमोतो महान्तोन गन्धन्तो मुहूर्तोस्तु अग्निष्टपदो वेदष्टपदो योष्टपदो पदवेष्टपदो ब्रह्माद्यातृप्यन्ताम् अदितेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवसोदप्रासावे पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमद पूर्णं मे भूयात् स्वाहा प्राच्याम् दक्षिणायां वेद्यां प्रवेद्यां ऊर्ध्वायाम् अधरायां पश्चिमदपरदपनयाम् वे पश्चिमदपरदपनयाम् उत्तरदपरदपनयाम् राज्यां विष्णु ग्रन्थिं विसृज्य सृष्टिमेर्ये स्वाहा सद्यन्तां देवासदनं सद्यन्तां देवासदनं सद्यन्तां पित्रो सदनगं सद्यन्तां पित्रो सदनं भूतिस्मादेद्भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयोर्भूतेः गोधेस्मादेर्नपदेर्नित्य सर्वयज्ञबुधं भवेत् आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं यमुदग्नेकस्तमत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय फलाय सदाय शतं वत्सते त्रयायुषम् आपोहिष्टमयो भुवः तानवोद्ये ददातन महिरणाय चक्षुरे यो वज्रवतमोरदस्तस्तभाजयदेहनः उदतेरुवमातरः तस्मादरङ्गमामव यत्विक्तया इन्मदाम् आपो जनयता जनः ॐ तमेश्वरस्तमे स्वभावात् करोमि यज्ञत् सकलं परस्मैस्तिम नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मादुद्वासयामि सोममुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि भागसमप्रस्य यज्ञेश्वराय नमः गुणफलनिवेदयामि आद्यशेषं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु
मात्राणि समदोषो निरुद्ध अग्नि गायत्री जपम विश्वानांज अग्नि गायत्री जपम करिष्ये ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः आवाहनादिष्टादि सर्वदेवताभ्यो नमः यदा तां स्थापित वेदा तां स्थापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி, பின்னர் அஞ்சனமிடுதல் என்கிற நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். பட்டி மேய்ந்தோர் காரேறு பலதேவர்க்கு ஓர் கீழ்கன்றாய் இட்டீரிட்டு விளையாடி இங்கே போதக் கண்டீரே. இட்டமான பசுக்களை இனிது மறித்து நீரூட்டி விட்டுக்கொண்டு விளையாட விருந்தாவனத்தை கண்டோமே என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் தனது திருமொழியில் ஆயர்பாடியில் மாடுகன்றுகள் மேய்த்த கண்ணனை பிருந்தாவனத்தில் கண்டதாக பாசுரமிட்டிருக்கிறாள். அந்த கண்ணனையே மணாளனாக வரித்து அவரையே திருமணம் செய்து கொள்வதாக கனவில் கண்டு அதை அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்கள். எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது இந்த பாசுரங்களை பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இதை கேட்பவர்களும் சொல்பவர்களும் நல்ல புத்திர பாக்கியத்தை பெறுவார்கள் என்பது பலஸ்துதி. நமக்கு வேண்டிய சாமான்களை வாங்குவதற்கு நாம் வெவ்வேறு கடைகளுக்கு முன்பெல்லாம் செல்வோம். பழம் வேண்டுமானால் பழக்கடை, பூ வேண்டுமானால் பூக்கடை, மளிகை சாமான் வேண்டுமானால் மளிகைக்கடை, துணி வாங்க துணிக்கடை, இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இடம். ஆனால் இப்போது எப்படி தெரியுமா? அத்தனையும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கிறது. அதுதான் மால், அதாவது சூப்பர் மார்க்கெட்டு. அதே போல முன்பெல்லாம் நம்முடைய வேண்டுதல்களும் வேறு வேறு, சேவிக்கும் பகவான்களும் வேறு வேறு. பணத்துக்கு மகாலட்சுமி, நோய் தீர வீரராகவ பெருமாள், கல்விக்கு ஹயக்ரீவர், பயம் போக நரசிம்மர், இப்படி. ஆனால் இப்போதெல்லாம் பக்தர்கள் தங்கள் அத்தனை பிரார்த்தனைகளுக்கும் ஒரே ஒரு பெருமாள், திருமால் என்கிற திருவேங்கடமுடையானை பிரார்த்திக்க திருமலைக்குத்தானே ஓடி வருகிறார்கள். இவர் வெறும் மால் இல்லை, திருவான மகாலட்சுமியை திருமார்பில் தாங்கி இருக்கும் திருமால். அந்த திருமாலின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற மாலை மாற்றும் நிகழ்வு. எம்பெருமான் சூடிய புஷ்பமாலையை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமிதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அந்த தாயார்கள் சூடிய அந்த மாலையை இதோ மீண்டும் எம்பெருமானின் திருத்தோள்களுக்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவிகள் சூடித்தந்த மாலை எம்பெருமானுக்கு எத்தனை உவப்பாக இருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இதோ இதை அடுத்து இன்னொரு அழகான நிகழ்வு. இதுவரை கடைக்கண்களால் தங்கள் மணாளனை தரிசித்துக் கொண்டிருந்த தேவிகள் இருவரையும் இப்போது எம்பெருமானுக்கு அருகே கொண்டு வந்து சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை கண்குளிர தரிசிக்க உள்ளோம். அதன் பின்பு அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் மங்கள அட்சதையை தேவிகளுக்கும் எம்பெருமானின் சார்பாக தேவிமார்களின் திருமுடிகளிலும் தேவிகள் சார்பாக எம்பெருமான் திருமுடியிலும் சேர்க்க உள்ளார். அதன் பின்பு கற்பூர மங்கள ஆரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவு பெறும். திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மட்டுமல்ல, இதோ இங்கிருந்தே தரிசித்த நம் அனைவருக்கும் அந்த கலியுக தெய்வத்தின் திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து. கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திந்தோர். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ